Good evening, all of you. Namo Namaha. Finally, we are going to start with the lecture. We are using textbook PDF, so I cannot rotate the screen today. You can zoom the screen by yourself. Okay. Okay. So we are going to start with the topic Yugma Mala, which is a poem. Basically, here we have to first understand Yugma means pairs. Okay, so there are many famous quotations like Yatha Raja Tatha Praja. So here Yatha and Tatha, you can observe in introduction, both the words are highlighted in pink color. So that indicates that Yatha and Tatha are pair, वो एक जोड़ी है. एंड हेंस पैर को ही हम यहाँ पे संस्कृत में बोल रहे हैं युग्म. माला तो आपको पता है, माला इज अ गार्लैंड. So Yugma Mala is again a beautiful poetry stating you the many thoughts, profound meaning from simple shlokas, but at the same time it is also application of yugmas, how to use yugmas in Sanskrit. जैसे हम इंग्लिश में if and then ऐसे कंस्ट्रक्शन देखते हैं या फिर दो के कंस्ट्रक्शंस देखते हैं. सो लाइकवाइज इन संस्कृत आल्सो वी हैव यथा तथा यावत तावत. हिंदी में हम इसको जर तर या फिर जैसे वैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोग हिंदी में यूज कर सकते हैं. सो ऑन द सेम थीम लाइन वी हैव हियर युग्मस like yada tada yavat tavat yatra tatra, and what all yugmas have the meaning. We'll see all these things in our explanation of poem. So we're going to start with the first shloka. Now focus on first shlok. I'll just zoom it for those who are using on computer. So you have to now just focus on the first shlok. Yes, students. So now in the first shlok, you can observe Vruttam is Vanshastham. Vanshastham is a name of Vrutta. Vrutta means हमें पता है. By now you know Vrutta means what? Meter. तो वो क्या बताता है हमें? The tune of this particular shloka. So again this is a 2 lines shlok and the name is Vanshastham, तो वही tune हमें use करनी है. I'll recite the shlok. Also right side में आप देख सकते हो कि it is taken from वृद्ध चाणक्य शतकात. शतकात, कात means at indicate पंचमी विभक्ति. So taken from वृद्ध चाणक्य शतक. वृद्ध चाणक्य शतक नाम का जो संस्कृत लिटरेचर है, from that literature this particular shloka has been taken. Okay, quickly we'll recite it. You have to listen it and after that you have to give me orals of the same shlok. So yatha chaturbhi ganakam parikshate निघर्षणच्छेदन तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा. So as you can observe here while reciting this shloka, after Chaturbhihi we have Visarga. Also after Purushaha we have Visarga, and I'm pronouncing that Visarga half because it is followed by Ka and Pavarga. So whenever we have Ka Varga or Pavarga pratyayas after Visarga, you know we have to pronounce Visarga half. Once again I am reciting it, so now please be careful and observe the Visarga. Yatha Chaturbhih Kanakam Parikshate निघर्षणच्छेदन तापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा. Now you can clearly observe the difference between ताडनैः में I am saying he completely, but चतुर्भिः नहीं बोल रही हूँ मैं, I am saying चतुर्भिः पुरुषः. So I am pronouncing that her half. So you have to remember that and you have to pronounce like this only in your oral exams, and while writing down you have to just give 2 dots as Visarga. Okay, now we'll quickly move ahead and we'll take a look at the translation or explanation of this particular shlok.
So in this shloka, we don't have any kind of a sandhis, students. So hence sandhis are not mentioned directly. The mentioned part is anvayah, and this anvay is very important this time because the word nigharshana chedana tapa tadanahi. First line के ending में आप word देख सकते हो. Please be focused. Today again I don't have that laser to point out here on the screen, so you have to focus on the word which I am explaining. Nigharshana chedana tapa tadanaihi. This word is a samas. So in this word there are total 4 words already included, and we have to split that 4 words. Why? Because our theme of this particular shloka is based on these 4 words. Now what is the theme? Particularly in this shloka we have the test यानी कि exams. तो एक पहले लाइन में हमें 4 टेस्ट और एग्जाम्स बताए गए हैं अबाउट गोल्ड, एंड इन सेकेंड लाइन देयर आर 4 एग्जाम्स फॉर मैन, how we should judge other person, or we should nahi, we always judge other person within these 4 criterias. So first we'll discuss about the first line, and for that please be focused on anvay. We'll go by order of anvaya. यथा कनकम निघर्षण छेदन ताप ताड़नैहि. यहाँ तक अभी हमें मीनिंग देखना है. So यहाँ पे the first word yatha means just as, and pink word tatha means similarly. Okay, so just as and similarly. अभी just as कनकम, कनकम means gold. पहला उसका टेस्ट होता है निघर्षण. ओके, घर्षण होना मतलब रब करना. तो यहाँ पे निघर्षण इज ऑल्सो रबिंग. रबिंग इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ गोल्ड. वी रब गोल्ड. मेटल्स को हम रब कर सकते हैं. रब करते हैं तो क्या चेक करते हैं कि ये प्योर है कि नहीं, वेदर इट टर्न्स ब्लैक और नॉट. ओके, द नेक्स्ट आता है छेदन. छेदन मीन्स टू कट. वी कैन ऑल्सो कट मेटल्स, एंड स्पेशली गोल्ड जो है वो तो हम कट कर ही सकते हैं, बिकॉज कट करते हैं तभी तो हम उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं into different shapes. After that we have tapa. Tapa word means heating. So the third test or exam of gold is heating. When we heat gold, हमें पता है मेटल का एक प्रॉपर्टी है कि we can heat metal and उसका कोई भी अलग शेप हम बना सकते हैं. Now I have a biscuit of gold. तो गोल्ड बिस्किट को अगर मैंने हीट किया, देन हीट करने के बाद वो मेल्ट हो जाएगा, देन आई कैन ड्रॉ any new shape from that same gold. So this is a property of metals. We have seen it in science, metals and non-metals. I hope you remember. Then we have ताड़न. ताड़न means hammering. So हमने malleability करके एक property सीखी थी metals and non-metals में. The metals can be drawn into a thin sheets. तो थिन शीट्स में मेटल्स को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या लगता है, हैमरिंग करना पड़ता है. सो अगर प्योर मेटल है तो उसके ऊपर हम हैमर कर सकते हैं. तो इसीलिए दीज आर द 4 स्टेप्स, एंड ये 4 स्टेप्स चेक करने के बाद फाइनली हमें पता चलता है कि वेदर दिस गोल्ड इज प्योर और नॉट, 22 और 24 कैरेट. ओके, सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. लास्ट टाइम 4 steps or 4 exams of gold for checking its purity. Nigharshana, rubbing, chedana, cutting, tapa means heating, and tadana means hammering. Now next word है अन्वय में इति चतुर्भिहि, मतलब in this manner. इति मतलब these are the steps or exams. चतुर्भिहि मतलब 4 steps or 4 exams. परीक्षते means examine or tasted. Okay, so gold, just as gold is tested by 4 dimensions or 4 types of exams like rubbing, cutting, heating and hammering, tatha likewise purushah, man, iti chaturbi parikshate, again same repeat हुआ है. Man is also tested by 4 types or 4 dimensions. अभी ये कौन कौन से है? तो पहला है श्रुतेन. श्रुत, यहाँ पे श्रुति का मीनिंग होता है नॉलेज. तो श्रुतेन बाय इट्स नॉलेज. सो फर्स्ट वी चेक द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन. नॉट नेसेसरी कि नॉलेज मतलब उसको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का सब कुछ आना चाहिए. उसका जो भी स्किल है, whatever the proficiency he or she may have, that you have to check. Then we have Shilena. Shila means character. We check the character of that person. So whether he or she is behaving good or not, according to that we state some statement about that person, that इसका character loose है और इसका character अच्छा है, बुरा है, and so on.
देन वी हैव गुणेन, गुण मीन्स वर्च्यूज, उसके गुण हम लोग देखते हैं कितने बुरे गुण है, झूठ बोलता है क्या, फिर वो उसका हैबिट अच्छा नहीं है, लेट आता है हैबिट अच्छा नहीं है, बट टाइम पे आता है हैबिट अच्छा है, दूसरों को हेल्प करता है हैबिट अच्छा है. सो इन दिस वे वी जज द पर्सन. सो थर्ड क्राइटेरिया इज वर्च्यूज, गुण, क्वालिटीज. देन वी हैव कर्मणा, कर्मणा मीन्स डीड्स. तो कैरेक्टर डिसाइड करते वक्त भी हम ये याद रखते हैं कि डीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. डीड्स मतलब जो पहले उसने कर्म किए है, मतलब कैसे कैसे बिहेव किया था, किसी को चीट किया था, ओके, कभी कॉपी किया था, तो हमें कॉपी किया है तो हमें बता रहे ये कॉपी चीटर ही है, कॉपी कैट है, तो हम ऐसा टैग लगा देते हैं. कैसे? बिकॉज हमने उसके डीड्स देखे, कर्म देखे. Okay, so in this four criteria, we always judge the person. First by Shrutena, by knowledge, Shilena, by character, Gunena, by virtues, and Karmana, by deeds. तो second line का meaning हो जाता है, likewise, man is tested by four dimensions: by knowledge, by character, by virtues, and by deeds. So now quickly write down the meaning. I'm dictating it in English. Just as gold is tested by four exams, just as the gold is tested by four exams. Quickly write it down. Just as the gold is tested by four exams: rubbing, cutting, heating, and hammering. Rubbing, cutting, heating, and hammering. Similarly, a man is tested by four dimensions, knowledge, character, virtues, and deeds. Knowledge, character, virtues, and deeds. Okay, I hope you have done with the writing. Last time I'm repeating once again, just check. Just as the gold is tested by four tests or four exams: rubbing, cutting, heating, and hammering. Similarly, a man is tested by four dimensions: knowledge, character, virtues, and deeds. Okay, so very easy shlok. Now let's quickly solve the exercise based on same shlok. So you have to refer the shlok, and I am showing you the exercise part on the screen. ओके, सो श्लोक 1 के लिए पहला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत. कनक परीक्षा कथम भवति. कनक मीन्स गोल्ड, परीक्षा इज यू नो एग्जाम. So four types of exams for gold. Raise your hand, or you can also drop your answer in chat box. Yes, Honri. Yes, miss. कनक परीक्षा निघर्षणे छेदन तापतादनैः इति परीक्षा इति भवति. Very good. Thank you, Honri. Students, now while writing this answer, there are two options you have to follow. First, आप वो जो word है निगर्षण छेदन ताप ताड़नैः, that word you have to write down as it is, because वो एक. और सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप वो वर्ड को स्प्लिट करके लिखोगे, देन यू हैव टू राइट डाउन ऑल द वर्ड्स इन तृतीया विभक्ति. निघर्षणेन, छेदनेन, तापेन, ताड़नेन, एक्सेट्रा. जस्ट अ मिनट. Yes, so you can write down the four words in Tritiya Vibhakti, and that will be the better answer for 10th standard, because 10th standard में examiner को आपको दिखाना है कि you are not just copying the answer from shloka. So you know the shlok, you have understood the shlok, and for that you should write down it in Tritiya Vibhakti. So I am repeating it again, once again. निघर्षणेन,
छेदनेन, छेदनेन वर्ड आप नेक्स्ट जालर रेखा चित्र में देख सकते हो। तापेन एंड ताड़नेन, ऐसे सभी वर्ड्स को आपको विभक्ति में कन्वर्ट करना है। एंड देन यू हैव टू राइट डाउन इति चतुर्भिः भवति। कनक परीक्षा निघर्षणेन कॉमा छेदनेन कॉमा तापेन कॉमा ताड़नेन इति चतुर्भिः भवति। दिस विल बी द एप्ट आंसर, यू विल स्कोर फुल मार्क्स। और अगर आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके लिखा तो मे बी हाफ मार्क कट हो सकता है as per the board's rule, because copy pasting is not the comprehension. Comprehension is to understand the passage or the poem and then write down. Okay, let's move ahead. We have a second question, same question but थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। पुरुष परीक्षा कथम भवति? Quickly raise your hand or you can drop your answer in chat box also. Yes, Kashmir, I am unmuting you. Yes, please tell me the answer. Yes, miss. Purusha pariksha shrutena शीलेन गुणेन कर्मणा इति चतुर्भिः भवति. Very good, very good. Thank you so much, Kashmira. Mridini, Thank you, you miss. have also answered correct in chat box. Yes. This second answer is again same. In Tritiya Vibhakti, you have to write down all the words, but luckily all the Tritiya Vibhakti words are already given in shloka in the second line, so you have to just write down same words and don't forget to write down at the end iti chaturbhihi bhavati. Okay, let's move ahead. We have a second question as same question है, मतलब आंसर्स आर सेम बट जस्ट आप उसको प्रेजेंट अलग अलग तरीके से कर रहे हो। तो इफ जाला रेखा चित्र आया तो यू कैन ऑब्जर्व कनक का परीक्षा ही पूछा है, 4 टेस्ट ऑफ गोल्ड्स। सो अगेन आपको वैसे ही लिखना है एंड हियर ऑफ कोर्स आपको ऑल वर्ड्स तृतीया विभक्ति में ही लिखने हैं। व्हाई? बिकॉज वन वर्ड इज गिवन एज छेदनेन व्हिच इज hint for you कि it is in tritiya vibhakti, so other word should be in vibhakti itself. Okay, so निघर्षणेन, तापेन and ताड़नेन। निघर्षणेन अच्छे से लिखो, निघर्ष 4 लेटर्स का वर्ड लिख लो एंड देन ऐड एन। नेक्स्ट है पुरुष परीक्षा का जाल रेखा चित्र। सो गुणेन इज ऑलरेडी गिवन, सो अदर 3 टेस्ट यू हैव टू राइट डाउन। बाय नाउ यू नो कि वो 3 टेस्ट क्या है। सो दैट इज श्रुतेन, शीलेन एंड कर्मणा। Okay, then we'll move ahead. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन माध्यम भाषा उत्तरत। सो श्लोक के ऊपर बेस्ड माध्यम भाषा उत्तरत भी आने वाला है फॉर 2 मार्क्स ओनली। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है यथा चतुर्भिः इति श्लोकस्य स्पष्टीकरणम लिखत। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यथा चतुर्भिः ये श्लोक है, इसका स्पष्टीकरण लिखो, मतलब एक्सप्लेन इट। तो बस हमें वैसे ही एक्सप्लेन करना है। Okay, and in explanation you can also write down that the gold is always scratched or rub, check, shine. Okay, cut करते हैं to see its elasticity. See, I'm repeating it. Gold को हम rub करते हैं to check the shine of gold. हम उसको cut करते हैं to see the elasticity. Heat करते हैं to check whether it is soft or not. तो मेटल्स जो होते हैं, स्पेशली एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक गोल्ड आर वेरी सॉफ्ट। 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसीलिए जब हम गहने बनाते हैं, व्हेन वी मेक सम ऑर्नामेंट्स एट दैट टाइम वी यूज 22 कैरेट गोल्ड एंड प्लस दूसरा और कोई उसमें मेटल मिक्स करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा गोल्ड का जो भी हम बनाते हैं एनी ऑर्नामेंट, वो टूट ना जाए। बहुत ही सॉफ्ट होके टूट ना जाए, इसीलिए 22 कैरेट में बनते हैं। 4 कैरेट अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक बिस्किट्स वगैरह जो हम इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, या फिर गोल्ड हम लोग लेके रखते हैं और बैंक लॉकर, सो एट दैट टाइम वी टेक अ 24 कैरेट गोल्ड। सो इसीलिए एकदम प्योर गोल्ड जो होता है वो हाईली सॉफ्ट होता है, सो वी हीट दैट गोल्ड टू चेक द सॉफ्टनेस। ओके, एंड वी हैमर इट। वो तो मैंने बोला आपको, हैमर क्यों करते हैं, देख चेक करने के लिए कि वो एकदम प्योर मेटल है क्या। वी कैन उसका मैलिएबिलिटी चेक करते हैं कि वो थिन शीट्स में हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सब आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है, सेम विथ योर ट्रांसलेशन। इस प्रकार से आपको श्लोक को एक्सप्लेन करना है। उसके 4 जो भी टेस्ट है वो, एंड देन उसके बाद
गोल्ड के 4 टेस्ट होने के बाद देन यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ मैन, और मैन के टेस्ट जो है वो 4 टेस्ट हम क्यों करते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, क्यों check the righteousness or virtuousness of that particular person. Then we'll move ahead. Very simple question we have. Amar koshat shabdam prayujya vakyam punarlikata. So can anybody tell me what is a similar word for kanakam? Yes, Rudrakshi, correct answer. Correct. Shrey, Kavya, Vedant, Honbri. Very good. So simple word kanakam उसके ऊपर use कर सकते हैं सुवर्णम. So नहीं सुवर्णम और हेम परीक्षते. If you are writing हेम then हेम as it is लिखो. हेमम नहीं होता है. हेम को एज इट इज यूज करो, एंड इफ यू आर राइटिंग सुवर्णम देन उसके ऊपर आपको अनुस्वार देना है. सो जनि हेम परीक्षते और जन सुवर्णम परीक्षते, जस्ट एक कोई भी सिनोनिम यूज करके रिप्लेस करके रीराइट द सेंटेंस. सो हियर completed श्लोक नंबर 1 with question and answers. Now we'll go ahead for श्लोक number 2 again, and this time unknown meter here, that is Anushtup meter. This particular shlok is very simple as it is taken from Hitopadesh. Can anybody tell me कि ये Hitopadesh source हमने कौन से lesson के लिए देखा था? Hitopadesh is a book. कथा संग्रह. Correct. We have seen it for Vyasane Mitra Pariksha. Vyasane Mitra Pariksha, this lesson was taken from Hitopadesh. Hitopadesh is similar storybook like Panchatantra, and hence a very simple book. From that book, we have taken one shlok in our Yugma Mala. So we'll quickly recite it, which is in Anushtup. Yatra vidvajjano nasti shlaghyastatralpadhirapi nirastapadape deshe erandopi drumayate. Once again I am repeating it. Yatra vidvajjano nasti shlaghyastatralpadhirapi nirastapadape deshe erandopi drumayate. In this we have 3 sandhis. So first sandhi is nasti, a very simple sandhi. Can anybody tell me what is the rule for this sandhi? Na plus asti is the answer. So what is the rule applied here? Yes, correct. So the rule applied here is na is ending in a and next word starts with a. So a plus a is equal to a. A plus a is equal to a. So now we'll move ahead. Next we have shlaghya tatralpadhirapi. Am I audible to you, everybody? Okay. So next sandhi is very important. Shlaghya tatralpadhirapi. Now here the word shlaghya. Shlaghya का meaning होता है प्रशंसा, स्तुति, appreciation. So after shlaghya we have sa, and as per the rule we know sa, sha and ra changes to visarga. So here sa changes to visarga and the first word is shlaghya. See, focus on the sandhi please, I am explaining it. पहला word था shlaghya जिसका meaning होता है प्रशंसा, appreciation. After shlaghya we have half sa, and we know sa, sha and ra changes to visarga, तो इसीलिए उसका विसर्ग बन गया, and the answer is shlaghya. Next we have word tatra, but in tatra we know the word atra tatra. हमने 8th standard में सीखा था atra tatra, sarvatra, okay, here there everywhere, ये सब हमने सीखा है. तो the word is tatra. So tatra के बाद जो a आ रहा है that indicates कि next word starts with a. So hence I have next word alpadhi. Again dhi के बाद में रुक गई because I have ra and I know the rule sa, sha, ra changes to visarga. So again मैंने ra को क्या बना दिया, visarga, and hence you can observe the word alpadhi he ends in visarga, and after that only the simple word is remaining which is api. So a is mixed in ra, हाफ र का बन गया विसर्ग, उसमें जो अ मिक्स हुआ था वो नेक्स्ट वर्ड के साथ मिक्स हो गया, दैट इज अपी. सो माय फाइनल आंसर इज श्लाघ्य प्लस तत्र प्लस अल्पदिहि प्लस अपि. इसमें हमने 2 रूल्स अप्लाई किए. पहला था स श र चेंजेस टू विसर्ग, एंड दूसरा अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तत्रा में हमने ऐड किया. ओके, देन नेक्स्ट इज वेरी सिंपल एंड योर फेवरेट संधि आई थिंक एरंडोपी. कैन एनीबडी टेल मी कि ये संधि को, ये रूल को हम क्या बोलते हैं?
एरंडोपी, yes, very good. OS संधि, well known संधि, so O changes to अह, एरंडह, and S changes to अ, so answer is अपी. So एरंडह plus अपी. Yes, so we'll move ahead now. We'll understand the meaning. Now here we have two pink words, that is yatra and tatra. So where and there, ऐसा उसका meaning है. So सबसे पहला वर्ड है यत्र, मीन्स वेयर. विद्वत जनः, स्टूडेंट्स यहाँ पे जन मीन्स लोग, एंड विद्वत जनः मतलब विद्वान लोग, लर्नेड पीपल. सो वेयर देयर इज नो लर्नेड वन, जहाँ पे कोई भी स्कॉलर नहीं है. तत्र, देयर, अल्पधि अपि श्लाघ्यः भवति. अल्पधि, अल्पधि मतलब डल वीटेड पर्सन, धी मतलब बुद्धि, एंड अल्प मीन्स बहुत ही कम बुद्धि है, एवरेज है, एवरेज इंटेलेक्ट और डल वीटेड पर्सन. श्लाघ्यः भवति, जैसे मैंने बोला श्लाघ्य मीन्स एप्रिसिएशन, तो श्लाघ्यः भवति मतलब प्रशंसनीय हो जाता है. The dull-witted person becomes praiseworthy. Once again I am repeating, where there is no learned one or no scholar one, even there even a dull-witted person becomes praiseworthy. जहाँ पे कोई स्कॉलर ही नहीं है, वहां पे एक एवरेज पर्सन को भी स्कॉलर माना जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, उसका सत्कार होता है. उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, हम हमेशा देखते हैं कि सिटीज लाइक मुंबई, पुणे और जो भी बड़े बड़े सिटीज है लाइक नागपुर, नासिक एक्सेट्रा में, सिटी में हम देखेंगे तो हमारा 10th स्टैंडर्ड का जब रिजल्ट लगता है तो वो ग्राफ बहुत ही ज्यादा होता है. ओके, ज्यादा होता है इन द सेंस बहुत कंपटीशन होती है कि 99.25, 99.80, कोई कोई 100% विद स्पोर्ट्स मार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज ये साल भी हमने ये सब फेस किया है, देखा, और एवरी ईयर वी लुक एट दिस. और हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट होता है उसको टफ कंपटीशन देने वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हाईएस्ट ऐसे करते करते 10-12 हाईएस्ट भी निकलते हैं जो सेम ही रेंज में, ऑलमोस्ट 99 to 100 में ही है. तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, टेंशन भी होता है कि अभी एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स इन. बट ये जो कंपटीशन यहाँ पे है इन सिटीज और सबर्बन एरियाज, वो कंपटीशन हमें विलेज में नहीं दिखता है. अब एक छोटा सा गांव है, उसमें 60%, ओके, ओनली 60% और 65% पकड़ के चलो, इतने ही रेंज में अगर किसी को मार्क्स मिले तो, और वो पूरे गांव में पहला आया है, ऐसे भी हो सकता है और होता ही है मेनी अ टाइम्स. ओके, तो गांव में 10th स्टैंडर्ड में एक बच्चा जो है उसको सिर्फ 65% मिले हैं, उसका बैनर लगाया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं. मतलब 65% वाला जो बच्चा है उसका बैनर लगा है, और यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मतलब परसेंटेज मिलने के बाद भी वही सेम परसेंटेज वाले 10 बच्चे भी दिख सकते हैं, इतनी कंपटीशन होती है. सो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ रीजन. रीजन की वजह से डिफरेंस हुआ, वहां पे बाकी कोई उसको कॉम्पिटिटर था ही नहीं, स्कॉलर नहीं था, इसीलिए लोग बस उसको ही प्रेज कर रहे थे. यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है. ओके, पॉइंट्स में फर्क हो रहा है, 0.5, 0.3 से मार्क्स आगे पीछे हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है. तो सेम थिंग यहाँ पे भी दे दी है. मतलब इनको बोलना क्या है कि जहाँ पे हमें कॉम्पिटिटर्स नहीं रहते वहां पे हमें कोई भी प्रेज करने लगता है, बट वो रियल प्रेजिंग होता है क्या? नहीं. वो हमारा पोटेंशियल बताता है क्या? बिल्कुल नहीं. इफ यू हैव अ कॉम्पिटिटर्स, हेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाती है, आप और ग्रो होते हो. सेकेंड लाइन में देखते हैं, पहले लाइन का आई थिंक किसी को मीनिंग चाहिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, डोंट वरी. अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा है, यत्र मीन्स वेयर, विद्वत जनः मीन्स लर्नेड वन, न अस्ति मतलब नहीं है, इज नॉट देयर, देन वैसी जगह पे, अल्पधिः मतलब अ डल वीटेड पर्सन, अपि ऑल्सो, श्लाघ्यः भवति मतलब बिकम्स प्रेजवर्दी, वेयर देयर इज नो लर्नेड वन, देयर even a dull-witted person becomes praiseworthy. आगे चलते हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दे दिया 10th स्टैंडर्ड का. विलेज का सीन अलग है और हमारे सिटी में सीन अलग है. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पोएट है उसने एक अलग एग्जाम्पल दिया है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रीज एंड प्लांट्स. क्या एग्जाम्पल है? यथा मतलब जस्ट एज, निरस्त पादपे देशे,
देश मतलब यहाँ पे रीजन, ओके, एक छोटा सा प्रदेश, रीजन। निरअस्त पादप, पादप मीन्स ट्रीज, टॉल ट्रीज। निर मतलब नहीं है, जहाँ पे कोई भी ट्रीज नहीं होती है, मतलब डेजर्टेड एरिया। तत्र देर, वहां पे, एरंडः, एरंड मतलब कैस्टर प्लांट। सी द डिफरेंस, ट्रीज आर ऑलवेज टॉल एंड बिग एंड प्लांट्स आर ऑलवेज छोटे छोटे पौधे होते हैं। प्लांट्स और ट्रीज में फर्क होता है। सर्वेश, आई थिंक you have a network problem at yourself. Can you please just check or just change your place, because I think my voice is clear for others. Others, please let me know. Am I audible to you? Yes. Shrey, Purva, Honbri are saying ki yes, ma'am. Voice is clear. Okay, Sarvesh. So just change your place. Okay, students. We'll continue. Thank you. So we are discussing about that Erandah ka example. Erandah means castor plant. See the difference between plant and tree. Tree tall and big होते हैं, प्लांट छोटे छोटे पौधे होते हैं, दिखने में भी मतलब साइज में भी कम होते हैं, और पौधा और ट्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अभी यहाँ पे ये जो कैस्टर प्लांट है, अपी मीन्स ऑल्सो, द्रुमायते, द्रुम मीन्स ट्री एंड आयते उसको ऐड किया है, सो द्रुमायते मीन्स कंसीडर्ड एज ट्री। मतलब डेजर्टेड एरिया जहाँ पे ट्रीज ज्यादा दिखती नहीं है, वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स को ही ट्री बोला जाता है। वहां के लोग जो है वो बोलते हैं, देखो देखो मेरे घर में पेड़ आया है। पेड़ आया है मतलब बड़ा सा पेड़ नहीं आया उनके घर में, एक छोटा सा पौधा आया, उसको पेड़ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे ज्यादा बड़ा शायद ट्री जो है वो अपने एरिया में देखा ही नहीं, इसीलिए वो उसी में खुश है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को हमें हमारे जो स्टेटमेंट है उसके साथ अगर कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एरंड मतलब अल्पधि, द डल वीटर पर्सन इज इक्वल टू एरंड, कैस्टर प्लांट। एंड निरस्त पादप मतलब जहाँ पे कोई भी स्कॉलर नहीं है, वैसे ही जहाँ पे कोई भी ट्री नहीं है, वहां पे छोटे से प्लांट को भी एक ट्री जैसा, एक बड़े ट्री जैसा कंसीडर करते हैं। ओके, सो अभी आई एम telling you the English meaning once again. You have to write down it. In a place where there is no learned one, in a place where there is no learned one, in a place where there is no learned one, even a dull-witted person, even a dull-witted person becomes praiseworthy. Even a dull-witted person becomes praiseworthy. In a place where there is no vegetation, in a place where there is no vegetation, even a castor plant, even a castor plant becomes a tree. Castor plant becomes a tree. Yes, I'm repeating it again for the last time. In a place where there is no learned one, even a dull-witted person becomes praiseworthy. In a place where there is no learned one, even a dull-witted person becomes praiseworthy. In a place where there is no vegetation, vegetation मतलब where there are no trees at all, ज्यादा vegetation होता ही नहीं है, even a castor plant becomes a tree there. Even a castor plant becomes or considered as a tree there. Drumayate, Honbri, Drumayate means considered as tree. द्रुम का मीनिंग ट्री होता है, पादपः, द्रुमः और तरुः, वृक्षः, all these words indicates tree. द्रुमायते considered as tree becomes tree. Okay, I hope यहाँ तक सबको श्लोक समझ में आया है. Any doubt regarding the shloka?
So basically this particular verse is a dig at people. Okay, that अगर if they are weak and then also they are getting a praisings, that means कुछ तो problem है उन्होंने उनमें, और उनको थोड़ा सा grow होना चाहिए, develop होना चाहिए, ना कि बस जहाँ पे competition नहीं है वहां पे ही खुद को praise worthy मान के रहना चाहिए. ओके तो यहाँ पे जो कैस्टर प्लांट एरंडह में जो बोल रही हूँ, कैस्टर प्लांट इज डिफरेंट एंड कैक्टस इज डिफरेंट. कैक्टस इज न्यूडुंग एंड कैस्टर इज एरंड. एरंड का ऑयल भी आता है, कैस्टर प्लांट का ऑयल भी आता है, कैस्टर ऑयल. सो CASTOR इज द स्पेलिंग, CASTOR. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि मैम कैस्टर मतलब कैक्टस क्या? नहीं, कैक्टस इज न्यूडुंग, और यही डेजर्टेड एरिया का ही एरंड प्लांट है. अगर आप गूगल करोगे तो आपको एरंड के वो फ्रूट्स भी दिखाई देंगे, छोटे छोटे काटे काटे वाले फ्रूट्स होते हैं एंड उससे ऑयल बनाते हैं. सो कैस्टर ऑयल बहुत फेमस है फॉर हेयर ग्रोथ. Yes, Vedant, correct. It is used for hair growth. Okay, whatever it may be, it is extra general knowledge. Now we'll move ahead and next we have our question answer series for the second shlok. Yatra vidvajjano nasti. Okay, so in second shlok we have a first question as पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखा था. लेफ्ट साइड में स्क्रीन के आपको देखना है. अल्पधिः कुत्र श्लाघ्यः भवति. कुत्र मीन्स वेयर, जगह बतानी है हमें, प्लेस बतानी है जहां पे डल वीटेड पर्सन बिकम्स प्रेज वर्दी. तो जगह मतलब हम सिटी या विलेज ऐसा बताएंगे क्या? नहीं, हमें जगह एज पर द कॉन्टेक्स्ट बतानी है. वेरी गुड. सो अथर्व ने आई थिंक आंसर दिया है. यत्र विद्वज्जनः न अस्ति, नास्ति मत लिखना, न अस्ति लिखो, बिकॉज आपने सीखा है संधि. सो यत्र विद्वज्जनः न अस्ति तत्र अल्पधिः श्लाघ्यः भवति. यत्र विद्वज्जनः न अस्ति तत्र अल्पधिः श्लाघ्यः भवति. सब संधि विग्रह जो भी किए हैं वो यहाँ पे यूज करने. तो आपका आंसर परफेक्टली आपको अन्वयन में मिलेगा. सेकेंड क्वेश्चन, एरंडः कुत्र द्रुमायते. अभी द्रुमायते का मीनिंग पता है, हनभरी को अभी अभी बताया था. द्रुमायते मीन्स कंसीडर्ड एज ट्री. तो ये एरंड प्लांट को हम कहाँ पे ट्री जैसा कंसीडर करेंगे? इन विच रीजन? वेरी गुड, निरस्त पादपे देशे, जहां पे वेजिटेशन नहीं है. सो एरंडः निरस्त पादपे देशे द्रुमायते. एरंडः निरस्त पादपे देशे द्रुमायते. नेक्स्ट संधि विग्रह हमने पहले ही डिस्कस किया, श्लाघ्यः प्लस तत्र एंड अल्पधिः प्लस अपि. आफ्टर दैट वी हैव अमरकोश शब्दम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखत. चलो क्विकली टेल मी द समानार्थ फॉर पादपः. ट्री, पादपः. तरुः, वेरी गुड वेदांत. यस काव्या, तरु बट उसके बाद विसर्ग देना मत भूलना. वृक्षः, तरुः दोनों के बाद विसर्ग चाहिए, बिकॉज पादपः के बाद भी विसर्ग है. यस. सो रुद्राक्षी, वृक्ष का स्पेलिंग रॉन्ग है, उल्टा कर्व देना है हमें. वृक्ष में पितृ में जैसे हम देते हैं वैसे ही. सो हमारा आंसर हो जाएगा यत्र एकः अपि वृक्षः नास्ति तत्र एरंडः द्रुमायते. यस, शाखी भी बोल सकते हो वेदांत, करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल मूव अहेड फॉर थर्ड श्लोक. यस, तो थर्ड श्लोक के ऊपर फोकस करना है. दिस पर्टिकुलर थर्ड श्लोक इज ऑफ 4 लाइन्स एंड उसका जो मीटर है वो अगेन थोड़ा बेचीदा मीटर है, उसका ट्यून इतना बैठता नहीं है.
अच्छे से. सो द मीटर इज शिखरिणी and it is taken from Niti Shatakam. So Niti Shatak is well known book for Subhashitas. Subhashitas के लिए नीति शतक बहुत ही फेमस बुक है. भर्तृहरि ने लिखा हुआ ये जो नीति शतक है, that is actually for moral and ethical values. So quickly we'll recite the श्लोक. यदा किंचिज्ञोऽहं विपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः. यदा किंचित् किंचिद् बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः. बहुत ही स्लो ट्यून है शिखरिणी का. ओके, सो आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन बिकॉज उसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है. सो प्लीज फोकस करो. यदा किंचिज्ञोऽहं विपैव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः. यदा किंचित् किंचिद् बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः. ओके, सो बहुत ज्यादा बड़े बड़े संधि इसमें है, बट डोंट वरी, हम अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो संधि इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो पहला संधि है किंचिज्ञोऽहं. यहाँ पे हमारा फेवरेट संधि है OS संधि, बहुत ही सिंपल सा. सो वो जो किंचिज्ञः है वो एक वर्ड है किंचिज्ञः. किंचित जानाति इति, मतलब जिसको थोड़ा थोड़ा पता है उसको बोलते हैं किंचिज्ञः. एकदम कम नॉलेज है, आधा नॉलेज है, उसको बोलेंगे किंचिज्ञः. So O changes to aha, S changes to a. So my next word is aham. Kinchichneha plus aham. Next है सर्वज्ञोस्मित्य भवदवलिप्तम. इसमें सबसे पहले OS संधि फिर से आ गया है. So सर्वज्ञो becomes सर्वज्ञः. S changes to a. So my next word is अस्मि. But आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो अस्मि है इसको शॉर्ट बना दिया है अभी, बिकॉज उसमें और एक मिक्स ई था. तो इफ यू रिमेम्बर 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था सवर्ण दीर्घ संधि. ई प्लस ई बिकम्स दीर्घ ई. ओके, सो शॉर्ट ई प्लस लॉन्ग ई बिकम्स लॉन्ग ई. तो यहाँ पे अस्मि का जो ई है शॉर्ट हो गया. एंड नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ इति. आफ्टर इति यू कैन ऑब्जर्व देयर इज य. इत्य था स्मित्य. सो यहाँ पे जो य है य चेंजेस टू ई. हमने बहुत बार सुना इट इज अ बेबी डॉल संधि. मैं बहुत बार बोलती हूँ ई अ बिकम्स य. Okay, when we repeatedly say ya becomes ya. Very good, Adarsh. Like vyomniva. Vyomni plus iva. Vyomniva. Vyomni plus iva is e plus e wala sandhi. And now I am talking about itya, जो त्य वाला संधि है, that उसमें e plus a becomes ya. So इसलिए मैं next word is iti. After that I have abhavat. So वहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो य में अ मिक्स है, इसीलिए अभवत. नेक्स्ट वर्ड. ओके, अभवत में भी देखना है आपको द चेंजेस टू त का रूल अप्लाई किया है. बहुत सारे रूल अप्लाई किए. डोंट वरी, इतना बड़ा वर्ड आपको एक साथ सॉल्व करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा. उसको स्प्लिट किया जाएगा. दो दो वर्ड्स आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में. सो अभवत के बाद द चेंजेस टू त एंड हेंस द नेक्स्ट वर्ड इज अवलिप्तम. द चेंजेस टू त का संधि हमने समयः में देखा था पंचशदधिक त्रिवादनम. और पंचत्रिंशत् तो चेंजेस टू द हो जाता है पंचत्रिंशत् अधिक त्रिवादनम एक्सेट्रा. ओके, तो लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग. सर्वज्ञ में सबसे पहले ओएस संधि अप्लाई हुआ है. देन ई प्लस ई बिकम्स दीर्घ ई वाला संधि अप्लाई हुआ है. देन ई प्लस अ इज इक्वल टू य वाला संधि अप्लाई हुआ है. एंड आफ्टर दैट फाइनली द चेंजेस टू त का संधि अप्लाई हुआ है. सो मेरा आंसर है सर्वज्ञ प्लस अस्मि प्लस इति प्लस अभवत प्लस अवलिप्तम. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम. इसमें तो दो वर्ड्स एक साथ आ गए. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करना है किंचित किंचित. ये जो त है यहाँ पे उसको एज इट इज वहां पे कट करके हमें लिखना है किंचित. पहला वर्ड है किंचित. किंचित मतलब लिटिल लिटिल. देन नेक्स्ट वर्ड, जैसे पहला वर्ड त में एंड हुआ, नेक्स्ट वर्ड शुड एंड इन त आल्सो. तो यस काव्या, करेक्ट. सो हमारा नेक्स्ट रूल वही है, द चेंजेस टू त. सो मेरा नेक्स्ट वर्ड भी आप देख सकते हो किंचित. दोनों भी वर्ड अभी सिमिलर हो गए. किंचित किंचित, लिटिल लिटिल.
नेक्स्ट वी हैव बुध जन सकाशात द तक हमारा एक ही वर्ड है, सो द चेंजेस टू त. बुध जन सकाशात इन अ कंपनी ऑफ लर्नेड पीपल. सकाशात मीन्स कंपनी, उनके साथ रहकर, उनके सहवास में रहकर, और बुध जन मीन्स लर्नेड पीपल. ओके, तो ये आपके लिए नया वर्ड है, मीनिंग पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप संधि बना सकते हो, बिकॉज संधिज आर ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स. एंड लास्ट इज द को त में चेंज करने के बाद उसमें अ मिक्स है, सो माय फाइनल वर्ड इज अवगतम. अवगतम मीन्स लर्न्ड, अंडरस्टूड. ओके, सो आंसर इज किंचित प्लस बुध जन सकाशात प्लस अवगतम. एंड द लास्ट सिंपल संधि इज मूर्खो स्मीति. पहला तो वेल नोन वर्ड मूर्ख, मैड. ओ चेंजेस टू अह, एस चेंजेस टू अ, सो अस्मि. अस्मि हमने ऊपर भी देखा है, अस्मि मतलब है. अहम बालकः अस्मि, अहम बालिका अस्मि मतलब आई एम, मैं हूँ, ऐसा जो हम बोलते हैं तो वो हूँ, आई एम है वो. ओके, आगे चलते हैं. लास्ट है इति. अस्मि में अगेन आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ई प्लस ई इज इक्वल टू दीर्घ ई हो गया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर है इति, स्मॉल ई. मूर्ख प्लस अस्मि प्लस इति. ओके, तो अभी इतने सारे वर्ड्स जो ये श्लोक में आए हुए हैं, देखते हैं ये वर्ड्स हमें क्या मीनिंग बताते हैं. सबसे पहला वर्ड है, अभी अन्वय को देखना है सबको. यदा मतलब व्हेन, अहम मतलब आई एम, किंचिज्ञः मतलब आई हैड स्कैंटली नॉलेज, मतलब मेरे पास जब किंचित किंचित लिटिल लिटिल थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान था. स्कैंटली नॉलेज, बहुत कम नॉलेज था मेरे पास. तदा एट दैट टाइम, अहम मतलब आई एम, द्वीपः इव मदान्धः. द्वीप मीन्स एलिफेंट, मदान्धः मीन्स मदर मीन्स प्राइड, अंधः मीन्स blind, blinded with pride. I was blinded with pride when I have a little bit of knowledge. मतलब मैं 10th स्टैंडर्ड में मैंने 90 प्लस क्या ला दिया, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एकदम होशियार हूँ, आई एम अ स्कॉलर वन. बट एक्चुअली मेरे पास नॉलेज बहुत ही कम था, एक ही फर्स्ट ही लेवल मैंने क्रॉस किया था, दैट इज 10th स्टैंडर्ड. Actually, I had a scantily knowledge, but I am assuming that I am a great personality, I am a scholar, and hence dvipah iva madandah samabhavam. Samabhavam matlab considered. I was blinded with pride like an elephant. मैं एलिफेंट के जैसे ब्लाइंड हो गया था. मद मीन्स प्राइड से. तो ये मदान्धः एलिफेंट जो है वो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सुना था. एलिफेंट्स जो होते हैं उनको इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट्स भी कहा जाता है मेनी अ टाइम्स. ये इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट्स क्या होते हैं, तो जब एलिफेंट को गुस्सा आता है, देन एट दैट टाइम एलिफेंट हिट हिज हेड ऑन ट्रीज एंड डू सम वॉइस, एक क्रैकी क्राइंग वाला वॉइस उनका होता है. एज वेल एज वो अपना हेड जो है वो सर जो है वो पेड़ के ऊपर जोर जोर से उसको हैमर करते हैं, तो उनको एक इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट कहते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे सीधा सीधा मैन को बोल दिया है कि यू आर मदान्धः. मदान्धः मतलब आप प्राइड से अंधे हो गए हो, लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट. मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा 90 अब क्या मिल गया 10th स्टैंडर्ड में, आप नाच रहे हो, आपको लग रहा है कि मतलब मैं वर्ल्ड का सबसे एकदम हिट मैन हूँ, आई एम लाइक स्कॉलर वन इन द होल वर्ल्ड. Okay, so here the man who is blinded with pride is compared with an elephant, intoxicated elephant, इसलिए द्विपह word use किया. Anyways, we'll move ahead. After first line we have a second line as tada mama manah. At that time my mind सर्वज्ञ अस्मि. सी मैंने बोला ना सर्वज्ञ अस्मि मतलब I know everything. मेरे माइंड में क्या चल रहा था, I know everything. इति अवलिप्तम अभवत. अवलिप्तम अभवत मतलब ऐसा हो गया. My mind got you can say concentrated on thinking that I am know everything. मेरा माइंड एक ही जगह पे concentrate हो गया, फिक्स्ड हो गया, कंफर्म हो गया
कि आई नो एवरीथिंग, मैंने मेरे माइंड में यही फिक्स किया कि मुझे सब कुछ आता है, तो थोड़ा हम बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है अभी, वो ये वाला सिचुएशन है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन आगे चलते हैं, वी हैव यदा, बट ऐसा हो रहा था जब, और अचानक मेरा जब 11th स्टैंडर्ड में कॉलेज में एडमिशन हो गया, एट दैट टाइम बुध जन सकाशात, बुध जन मतलब लर्नेड पीपल, ओके, मुझसे भी ज्यादा सीखे हुए जो लोग हैं, मे बी मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके साथ भी सकाशत मतलब इन अ कंपनी ऑफ लर्नेड पीपल, बुद्ध जन लर्नेड पीपल, सकाशत इन अ कंपनी ऑफ लर्नेड पीपल, किंचित किंचित अवगतम, किंचित किंचित लिटिल बाय लिटिल, एंड अवगतम लर्न फ्रॉम देम, आई हैव लर्न फ्रॉम माय बुद्ध जन और माय लर्नेड पीपल, लिटिल बिट मैं थोड़ा थोड़ा उनके साथ रहकर सीखने लगा, एंड तदा एट दैट टाइम अहम मूर्ख अस्मि, आई एम फूल, इति ज्ञात्वा नोइंग दिस, मे मदह, मेरा जो प्राइड था, मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस था, दैट टाइम मदह ज्वरः इव व्यपगतः, ज्वरः मीन्स फीवर, ओके, टेम्परेचर, फीवर, इव मीन्स लाइक, व्यपगतः मीन्स चला गया, डिसअपियर्ड, मैं जो खुद के ऊपर इतना गर्व करता था ना, प्राइड करता था ना, वो एकदम फटाक से, जैसे फीवर कैसे होता है, बीच में ही चढ़ता है, टेम्परेचर हाई जो हो जाता है, थोड़ा सा हमने केयर लिया, मेडिसिन लिया, फटाक से फीवर उतर जाता है, ओके, तो वैसे ही मेरा जो फॉल्स प्राइड था वो चला गया जैसे ही मैं लर्नेड पीपल के साथ घुल मिल गया, इन अ कंपनी ऑफ लर्नेड पीपल, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग समथिंग लिटिल बाय लिटिल, आई गेट टू नो दैट आई एम वेरी कूल यार, मुझे कुछ भी नहीं आता था, 10th स्टैंडर्ड तक मुझे 90 प्लस में लाया, बट मैं जब उनके साथ रहने लगा तब मुझे समझा कि इनको स्केटिंग आता है, मुझे स्केटिंग नहीं आता, इनको और कोई चीजें आती है, इनको इलेक्ट्रिशियन कंपटीशन में बहुत बोलने के लिए बहुत अच्छे से आता है, इनको क्या श्रावण क्वीन में कॉम्पिटिटर्स बहुत हाई है, यहाँ पे मेरे टीचर्स जो है वो उनको उनके पास पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज्यादा नॉलेज है, और मे भी मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, मैंने मैथ्स में टॉप किया था, बट जब यहाँ आके मैंने कॉलेज में देखा तो अरे मैथ्स के प्रोफेसर्स तो और मेरे से भी होशियार है, उनको और ज्यादा मैथ्स आता है, या फिर मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स है उसमें तो एक एबाकस का स्कॉलर है, एक मैथ्स का स्कॉलर है, ऐसे आप अपने अपने फील्ड में चॉइस में आप देख सकते हो, बट ये सब आप फेस करने वाले हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं तब हम स्कॉलर बन जाते हैं। when we get to know about the more learned people, हमें ऐसा फील होने लगता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता है इसके सामने, बट उनके साथ रह के हम क्या करते हैं, हमारा खुद को डेवलप करते हैं। Okay, so quickly write down the meaning of the same. When I had a scantily knowledge, when I had a scantily knowledge, when I had scantily knowledge or little knowledge, scantily word आपको कठिन लग रहा है तो you can write down little knowledge. I was blinded with pride. I was blinded with pride. Like an elephant. Like an elephant. Or like an intoxicated elephant. फिर से एक बार रिपीट करूं. When I had little knowledge, I was blinded with pride like an elephant. Next, आगे चलते हैं. My mind got focused thinking that. My mind got focused thinking that I know everything. My mind thinking that I know everything. But when I started acquiring knowledge, little by little from learned, but when I started acquiring knowledge little by little from learned, I realized that I am fool. I realized that I am fool, and my false pride disappeared like fever. And my false pride disappeared like fever. Last time I'm repeating the whole translation. When I had scantily or little knowledge, I was blinded with pride like an elephant or like an intoxicated elephant. My mind got focused thinking that
I know everything. But when I began to acquire knowledge, or when I started acquiring knowledge little by little from the learned, I learned that, I realized that I'm a fool, and my false pride disappeared like fever. Okay, any doubt? Because बहुत सारे words new है आपके लिए, तो any doubt regarding any word, please ask. Okay, then shall we move to the question answer series? Okay. Okay, quickly give me the answer for वाक्यं लिखितं मनुष्यः द्विप इव मदान्धः कदा भवति, and I want this answer orally, yeah, because थोड़ा सा difficult श्लोक है. मनुष्यः द्विप इव मदान्धः कदा भवति. Quickly raise your hand. मनुष्य इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट जैसा प्राइड से अंधा कब हो जाता है? When the man became blinded with a pride. When? कदा? खुद को प्राइड फील कभी होगा, गर्व कब लगेगा? जब 10th स्टैंडर्ड में 90 प्लस आएगा, या फिर जो भी गोल था वो कवर होगा, तभी आपको थोड़ा प्राइड फील होने लगेगा कि यस कुछ तो अचीवमेंट किया. सो आफ्टर अचीवमेंट, तो यहाँ पे आफ्टर अचीवमेंट के लिए क्या क्या वर्ड्स आए हुए हैं? तो सिंपली वी हैव टू राइट डाउन यदा मनुष्य किंचित न्यः आसीत्. जब मनुष्य को थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल गया, जब उसको थोड़ा थोड़ा पता चल गया, यदा किंचित न्यः आसीत् सः तदा द्विप इव मदान्धः भवति. यदा मनुष्य किंचित न्यः आसीत् तदा सः द्विप इव मदान्धः भवति. जब इंसान को थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट मिलने लगता है, तब वो क्या हो जाता है? प्राइड से अंधा होने लगता है. चलो सेकंड क्वेश्चन. मूर्खः अस्मि इति मनुष्येण कुतः अवगतम्? यस हॉर्नबी, करेक्ट आंसर. सो मूर्खः अस्मि इति मनुष्येण बुधजन सकाशात् अवगतम्. मैं मूर्ख हूँ या मैं फूल हूँ, मैं नहीं, मतलब वो मनुष्य बोल रहा है श्लोक में. सो ये उसको कहाँ से पता चल रहा है? When he is in company of learned people. बुधजन सकाशात् is the answer. Only one word is the answer. कुतः means from where. यस, सो संधि विग्रह जैसे मैंने बोला था, इतने बड़े बड़े संधिज आपको नहीं आएंगे, उसको छोटा करके दिया जाएगा 2 और 3 वर्ड्स. सो किंचित न्योहम में किंचित न्यः प्लस अहम, एंड अभवद अवलिप्तम में अभवत प्लस अवलिप्तम. द चेंजेस टू त, बस एक रूल अप्लाई करना है. ओके, द लास्ट क्वेश्चन. माध्यम भाषया उत्तरत कदा मदः व्यपगच्छति, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. सो क्वेश्चन विल बी इन संस्कृत, बट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन इंग्लिश इन 3 paragraphs. First para will be of introduction, that Yugmamala is a beautiful poetry giving us a good thoughts as well as the application of yugmas. Second paragraph will be your answer, main body, and third paragraph is the conclusion. In conclusion, I always say please use suvichar quotations from Hindi, Marathi, English, and then sum up or end your answer. So कदा मदः विपगच्छति, मतलब हमारा फॉल्स प्राइड कब डिसअपियर हो जाता है, कब चला जाता है. तो हमें पूरा श्लोक जो है वो लिखना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन एक्सप्लेनेशन. सिंपली ये श्लोक में क्या बताया कि नेवर बी प्राउड ऑफ अ लिटिल नॉलेज, एज लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. सो आप वो जो लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ये आप यूज कर सकते हो कोटेशन. ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन कि नेवर बी प्राउड ऑफ लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा अचीवमेंट और लिटिल अचीवमेंट के लिए हमेशा प्राउड फील मत करो. यू शुड बी फील प्राउड, बट वो प्राउड जो है वो ऐसा अंधा प्राइड नहीं होना चाहिए, हाथी के जैसा. Okay, always strive to upgrade yourself, come into the contact of more scholar people, gain or acquire more and more knowledge. ये सब मैं आपको सूचना भी कर रही हूँ. आई एम ऑल्सो गिविंग यू एडवाइस एज वेल एज यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स इन योर दिस पर्टिकुलर माध्यम भाषा का आंसर.
ओके तो क्या क्या बोला मैंने? नेवर बी प्राउड ऑफ लिटिल लिटिल अचीवमेंट. Don't go cheers on your head all the time. Always continue to upgrade yourself. Always come into contact with more knowledgeable people and develop yourself. Okay, so all these things should be covered in this English answer Madhyama Bhashya Uttaram Kuruta. Now again we'll move ahead for the fourth shloka. Oh, this is very interesting shlok. Before starting with the shlok, I would like to highlight here that many times we saw that advertised "Dar ke aage jeet hai." Yes, everybody, have you seen it? Yes. So same thought is there in this particular shloka that "Dar ke aage jeet hai." तो मोटिवेट करने वाला श्लोक है एंड ऑल्सो विद द एग्जाम्पल गिवन बाय पोएट फ्रॉम पंचतंत्र. Now Panchatantra is again a well known story book, and as we know in Panchatantra the stories are given like a lessons, and the final moral of the story is always given in the form of shloka. So that final moral of the story is highlighted here in Yugma Mala also. Again a very simple vrutta meter, that is Anushtup Chanda. So we'll quickly recite the shlok. As all of you know, Anushtup Chanda is very easy to recite. So tavad bhayadhibhetavyam yavad bhayamanagatam agatantu bhayam viksha narak kuryad yathochitam. Once again I am repeating it. Tavad bhayadhibhetavyam yavad bhayamanagatam agatantu bhayam viksha narak kuryad yathochitam. First sandhi highlighted is bhayadhi. ये जो भयाद्दी संधि है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेयर संधि यू कैन से. तो पूरे हमारे 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में आई थिंक ये संधि सिर्फ हमें 2 बार देखने वाला है, एक भयाद्दी एंड एक और एक वर्ड जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे. सो ये जो वर्ड है भयाद्दी, इसमें एक संधि का रूल हमने पहले ही देखा है फ्रॉम समय, दैट इज द चेंजेस टू त. आई नो ऑल ऑफ यू हैव नाउ स्पॉटेड इट करेक्टली बिकॉज मेनी टाइम्स से रिपीट हुआ है. Yes, so you are answering it correctly that the changes to the. So bhayad का हो गया bhayat. Plus student also here the sandhi rule is dhi changes to he. Why dhi changes to he? For the ease of pronunciation. Because अभी imagine करो जब द है और द के साथ हमें ही को बोलना है, तो it is not possible. कंबाइन करते वक्त त को द बनाना है, राइट, और द के साथ ही को जोड़ना है. तो कभी देखा है द और ही का जोड़ाक्षर क्या हो जाएगा? हदी या दही? कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एंड हाउ शुड वी राइट इट? ह एंड द टुगेदर. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, एंड हेंस दैट धी चेंजेस टू ही. तो फिर हमारा कंबाइन करते वक्त कॉम्बिनेशन बन गया धी. और ये कॉम्बिनेशन हमने बहुत बार देखा है, सिद्धि, सिद्धेश, ऐसे वर्ड्स में, right? So from that verse you have to remember that the changes to the and the changes to he for the ease of writing and pronunciation. So bhayaddi is equal to bhayat plus he. Okay, next a simple sandhi bhayamanagatam ma mimi sandhi. Yes, when many of you are already answering in the chat box that name is ma mimi sandhi. So bhayam plus anagatam. First word ends in ma, and next word starts with swar. Now quickly we'll take a look at the translation of the shlok. यावत and तावत, ये words यहाँ पे highlight किए हुए pink color में. These are युग्मस. जोड़ी है वो पैर है. So यहाँ पे यावत का मीनिंग होता है as long as, and तावत means till then, as long as and till then, जब तक तब तक. So as long as yavat bhayam anagatam, bhayam means fear or a calamity. यहाँ पे calamity meaning लेंगे हम. Anagatam मतलब नहीं आई है, not arrived yet. As long as the fear or a calamity has not arrived, till then तब तक ही भयात भेतव्यम. भयात मतलब from calamity, भेतव्यम should be scared of. So as long as the fear has not arrived, till then only one should be scared of the fear.
Yavat, as long as. Bhayam, calamity. Anagatam, not arrived. Tavat, till then. Bhayat, from fear. Bhetavyam, should be scared of. Clear? Any doubt regarding first sentence? Am I audible to you? यावत भयादि भेतव्यम. हाँ, ट्रांसलेशन आपने कहाँ तक सुना है? Okay, I am repeating it again. Yavat, as long as. Bhayam, fear or calamity. Anagatam, has not arrived. Tavat, till then. Bhayat, from fear or from calamity. Bhetavyam, should be scared of. तो पहले लाइन का मीनिंग हो जाता है as long as the fear has not arrived, till then only one should be scared of the fear or calamity. जब तक संकट आ नहीं जाता है तब तक ही हमें संकट से डरना है. तथापि, तो आने के बाद क्या करना है वो सेकेंड लाइन में दिया हुआ है. तथापि, आफ्टर दैट. आगतम तु भयम. आगतम, अराइव्ड. संकट आ गया है. भयम मतलब संकट, फियर. वीक्ष, वीक्ष मतलब लुकिंग. after seeing that the calamity is approaching towards me, calamity मेरे पास आ रही है, तब नरह, man, यथोचितम कुर्यात. यथोचितम मतलब appropriate, कुर्यात मतलब should do, should take a appropriate action. जब भी हम संकट में होते हैं, we have only two options. एक, छोड़ के भाग जाओ, और दूसरा face that calamity, face that संकट. तो यहाँ पे पोएट ने हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बताया. यू हैव टू फेस द कैलेमिटी. तो फेस करने के लिए क्या करना है? यू शुड टेक अ एप्रोप्रिएट स्टेप. तो फियर, यहाँ पे बेसिकली पोएट बोलना चाहते हैं कि फियर इज अ कॉमन थिंग बिटवीन ऑल ह्यूमन बीइंग्स. इज अ बिहेवियर, कॉमन बिहेवियर ऑफ ऑल द पीपल. जो बोलता है ना मैं नहीं डरता यार किसी से, डर कोई भी चीज का मुझे डर नहीं है, बट उसके अंदर डर होता है कोई ना कोई चीज का. फोबियास तो हमने बहुत सुने हैं. साइकोलॉजी में एक फोबिया का अलग ब्रांच क्रिएट हुआ है. तो फोबिया का ब्रांच क्यों क्रिएट हुआ? हाइपर फोबिया, और कुछ पानी का फोबिया, ऊंचाई का फोबिया, एंड सो ऑन. बिकॉज डर इज द कॉमन बिहेवियर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, बट वी शुड बी स्कैर्ड ऑफ दैट संकट और दैट कैलेमिटी till it arrived. After arriving, we have to face it with appropriate action. Okay, so quickly write down the meaning. As long as the fear or calamity has not arrived, as long as the fear or calamity has not arrived, till then only one should be scared of calamity. Till then only one should be scared of calamity. फर्स्ट लाइन में फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ. एज लॉन्ग एज द फियर हैज नॉट अराइव्ड, टिल देन ओनली वन शुड बी स्कैर्ड ऑफ कैलेमिटी. हैविंग सीन, वीक्ष का मीनिंग है ये. हैविंग सीन द कैलेमिटी इज अप्रोचिंग, हैविंग सीन द कैलेमिटी इज अप्रोचिंग, अ मैन शुड डू व्हाट इज प्रॉपर. A man should do what is proper, or man should take a proper action. A man should take a proper action, appropriate action.
Okay, any doubt regarding this shlok? Okay, so still we have 2 more shlokas. We'll complete this Yugmamala poem in the next lecture. Till then, thank you so much, everyone. And your homework will be solve the examples, I mean questions of the same shlok number 4. Tavad bhayat bhetavyam. Okay, thank you so much, and punarmilamah.